اظہار کریں کیونکہ ہم شادمانی کے لیے یہاں پر کال کیے گئے ہیں۔ آج کا دن بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ آپ سب اس بات سے واقف بھی ہیں کہ ہم نے جو سیریل یہاں پر سٹارٹ کی ہوئی ہے ایپل آف گولڈ، اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا ریجوائسنگ ورڈ، شادمانی کی باتیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج جو یہ سرمن ہے اس کے ذریعہ سے آپ بڑی شادمانی کو حاصل کریں گے۔ تو میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے کلام میں سے ذکریہ اور اس کا 9واں باب، خداوند کے کلام میں سے ذکریہ 9واں باب اس کی 9ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور ایک ریفرنس میں چاہوں گا میرے ساتھ نکالیے، یوحنا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 16ویں آیت میرے ساتھ نکالیے، اور میں چاہوں گا کہ 12ویں آیت سے شروع کریں گے۔ دوسرے دن بہت سارے لوگوں نے جو عید میں آئے ہوئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ سر، بیٹھیے، تالی بجانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں جی، پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے اور یسوع بادشاہ کے لیے ہم زوردار تالی بجائیں گے۔ میرے خیال میں ابھی بیٹھ رہے کم تالی، آئیے زوردار تالیاں خداوند کے جلال کے لیے، یسوع بادشاہ کے لیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بہت کم آواز، ہاللیلویہ، بادشاہ کا بادشاہ، بادشاہ کا بادشاہ، بادشاہ کا بادشاہ، وہ بادلوں پر آنے والا، وہ بادلوں پر آنے والا۔ تھینک یو۔ شادمانی کی باتیں، خوشی کی باتیں، اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے۔ آج کا دن یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بادشاہ ہونے کے لیے ڈکلیئر کیا، اوپنلی۔ حالانکہ جب وہ پیدا ہوا تو بادشاہ، اور ہیرودیس بادشاہ ڈر گیا، کہتا بادشاہ بادشاہ، وہ پیدا بھی ہوا بادشاہ، اور جب جوان ہوا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ، تب بھی بادشاہ ہے۔ اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ آج کے دن کے اندر یسوع مسیح نے علانیہ اپنے آپ کو شو کر دیا کہ وہ بادشاہ دنیا کے اندر ہو کر آیا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں ذکریہ اس کے بارے میں کہتا ہے، زبور کے اندر، زبور کے صحیفوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہے، اے بنت سیون خوب للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ بنت سیون، سیونی اسرائیل کو کہا گیا، اور اسرائیل کا بادشاہ جو تھا وہ یسوع ہے۔ مگر خداوند کے کلام میں پرانے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنا بادشاہ بنا کر، مگر اسرائیل نے پہلے ہی بادشاہ مانگ لیا۔ وقت آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر دنیا کے اپنے بادشاہ تھے، ان پر حکومت جتاتے، ان پر رول کرتے، اور یہ اسرائیل ایک واحد قوم تھی دنیا کے اندر جسے خدا نے چنا۔ ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا بادشاہ یہوہ خدا تھا۔ ہاللیلویہ، وہ ان کے آگے آگے چلتا، ان کو گائیڈ کرتا، ان کو کھانے کے لیے دیتا، من آسمانی خوراک ان کو کھلاتا۔ مگر انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دنیا داری کا بادشاہ چاہیے، جو دنیا کے اندر ہم پر حکمرانی کرے۔ نبی کو بھی قبول نہیں کر رہے، سیمول نبی تھا اس دور کے اندر، اسے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ خدا کو بھی اپنا بادشاہ نہیں مان رہے، تب خدا نے
उनको फिर एक बादशाह दुनियादारी का दिया। और उस बादशाह का नाम किसी को पता हो? साउल बादशाह। शुक्रिया, थैंक यू। साउल बादशाह दिया गया, मगर वो दुनियादार निकला। उसने खुदा के हुक्मों को तोड़ दिया और जादूगरों के पास जाने लगा। खुदा को छोड़ दिया उसने। अच्छा बादशाह नहीं था। खुदा ने उसको बादशाही से हटा दिया, फिर दाऊद को मुकर्रर किया। इसी तरह चलते चलते बादशाह इस्राएल के अंदर बर्पा हुए। 42-41 बादशाह जो थे वो कौम बनी इस्राएल को दिए गए, मगर वो बादशाह दुनियादार थे। गुनाह में कौम को डाल दिया, बुत परस्ती के अंदर डाल दिया, बदी के अंदर डाल दिया, जहन्नम के अंदर ले गए, असीरी के अंदर, गुलामी के अंदर कौम चली गई। ये बादशाह क्योंकि दुनियादार थे। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा था कि जो बादशाह होगा इजराइल का, वो ज्यादा बीवियां ना करे, शादियां ना करे। फिर उस बादशाह के लिए कहा गया था कि वो क्या होगा, वो दौलत जमा ना करे, घोड़े जमा ना करे और इन चीजों से दूर रहे। मगर कौम बनी इस्राएल के जितने बादशाह आए, उन्होंने घोड़े जमा किए, रथों पर सफर करते थे, ऊंटों का सहारा लेते थे, ऊंटों के अंदर अपनी बादशाही को मनाते थे। और फिर घोड़ों को जमा किया, घोड़ों को क्या करते थे, लाते थे अपने मुल्क के अंदर। और फिर दौलत जमा की। लिखा है दौलत के खजाने जमाना करने वाला वो बादशाह, बीवी करने वाला बादशाह ना हो। मगर इस्राएल के बादशाह ने बेमार ये काम किए, नापाकी के काम किए, क्योंकि खुदा ने वादा कर रखा था। और फिर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने ऐसा बादशाह, क्योंकि दुनिया के जो बादशाह है वो खुशहाली निजात दे नहीं सकते, वो तो गुनाह के अंदर ही कौम को लेकर गए। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा वादा खुदा ने कर दिया, यहोवा खुदा ने, कि बिन्ते सिय्योन खूब ललकार, देख तेरा बादशाह आता है। वो घोड़े पर नहीं बल्कि लादू के बच्चे पर, गधे पर सवार होकर। उस बादशाह की 4 बातें यहां पर हाईलाइट की गई ज़िक्रिया की किताब के अंदर। लिखा वो ऐसा किंग होगा, ऐसा बादशाह होगा जो लिखा गधे के ऊपर सवार होगा। किसके ऊपर? फिर लिखा है निजात उसके हाथ में होगी। हालेलुया। फिर लिखा है वो हलीम होगा। आमीन। ज़िक्रिया की किताब के अंदर ये चारों बातें लिखी है। निजात उसके हाथ में होगी, वो हलीम होगा, गधे के बच्चे पर सवार होगा। तो आप देखिए खुदावंद का के कलाम के अंदर लिखा है कि क्राइस्ट लिखा है बैते फिगा के इलाका में से, गांव में से, और फिर बैतनिया के इलाका में से। ये इलाका जब आया तो लिखा मसीह यीशु ने, लिखा वहां से निकला तो फिर लिखा 2 शागिर्दों को भेजा, कुछ लोगों को भेज दिया कि सामने वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें गधी बधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा पाओगे, उसे खोलकर मेरे लिए ले। हाँ, अगर कोई पूछे कि भाई क्या करते हो, तो उससे कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है, तुम्हें दे देगा। और खुदावंद के कलाम का शागिर्द जब वहां पर पहुंचे उस इलाका के अंदर, गधी को खोल रहे हैं। और जब गधी को खोल रहे हैं तो किसी ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा ये गधी चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा खुदावंद को जरूरत है। आमीन। उसने कहा ले जाओ। हालेलुया। ये अल्लाही तरीका से खुदा ने उनको ब्लेस किया। आमीन। इसका मतलब है होली स्पिरिट ने, पाकलू ने उस बंदे को गाइड कर दिया। उसने कहा भाई ले जाओ, गधी भी ले जाओ, उसका बच्चा भी ले जाओ। हालेलुया। ताली बनती है उसके लिए वैसे। हालेलुया। अच्छा, मैं एक बात, थोड़ी सी बात। आज का दिन खुदावंद के कलाम ने किया, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। ये दिन, आज का दिन खुदा ने मुकर्रर किया, किसी इंसान ने मुकर्रर नहीं किया। दुनिया के अंदर बहुत सारे दिनों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मदर डे, फादर डे, टीचर डे, अर्थ डे और दीगर दिनों को सेलिब्रेट, दुनिया इन दिनों को सेलिब्रेट कर रही है, मगर उनको ये नहीं पता कि आज का दिन खुदा ने मुकर्रर किया, ये सेलिब्रेट करने का दिन है, ये मनाने का दिन है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखा आज का दिन खुदा ने मुकर्रर किया है, किसी इंसान ने नहीं मुकर्रर किया कि यीशु बादशाह बने। और खुदावंद के कलाम लिखा जब वो गधी को लेकर आए तो लिखा यीशु मसीह उस पर बैठ गया।
बैठने से पहले लिखा है लोगों ने खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसके ऊपर कपड़े बिछाए और बांस में लिखा है डालियां काट काट कर लिखा है लहराना शुरू की। हालेलुया। और क्या कहने लगी? होशाना। हालेलुया। क्या कहने लगे? होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से, यानी ये इंसानों की तरफ से नहीं है, दुनिया के बादशाह इंसान चुनते, उनको बादशाह बनाते, मगर ये बादशाह जो आया है ये आसमानों से। आइए इस बादशाह की जरूरत। हालेलुया। ये वो बादशाह जो आसमानों से आया है, आने वाले पर होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यानी आसमान पर भी होशाना उठी है, जमीन पर भी होशाना के नारे लगने लगे। और लिखा है कि जो मुखालिफ लोग थे, फकी फरीसी थे, वो घबरा गए। ये क्या माजरा है? ये किस बात का शोर है? क्यों नारे बज रहे हैं? होशाना। होशाना का मतलब क्या है? आ खुदा हमें बचा और निजात दे दे। हालेलुया। वो निजात दहिंदा आ गया। उसकी जो निशानी बादशाह की बताई गई, निजात उसके हाथ में है। उसने क्रॉस के ऊपर जान देकर मुझे और आपको निजात दी है। आमीन। फिर लिखा है कि निजात उसके हाथ में, वो हलीम है। ऐसा बादशाह जो हलीम बन गया हमारी खातिर, हलीमी की इंतहा उसने कर दी। यसाया 53 बाब के अंदर लिखा है कि वो उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, वो अपना मुंह नहीं खोलता, इतनी हलीमी। लिखा है वो उसे ऐसे ले गए जैसे बाल कटवाने वाले के पास, यानी ऐसी भेड़ जिसको बाल कटवाने वाले ले गए और वो खामोश खड़ी रही। लिखा है उसने, लिखा है कि अपनी दाढ़ी नोचने वालों के सामने खामोश रहा, अपनी पीटने वालों के सामने खामोश रहा। ऐसा हलीम, अपना मुंह नहीं खोला। और इस बात का सहीफा जो था, ये जो लिखा है हबशी खोजा जो था, लिखा है वो ये सहीफा पढ़ता जा रहा था, गैर कौम का शख्स था। खुदावंद के कलाम लिखा है ये सहीफा पढ़ता जा रहा है यसाया का कि उसे वो भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, मगर वो मुंह नहीं खोलता। कहते यार किस नबी की बात हो रही है? जब ये सोच रहा है, होली स्पिरिट ने फिलिप्पस से कहा कि भाग, और लिखा है वो भागता हुआ उस रथ के साथ हो लिया फिलिप्पस, और कहने लगा भाई जो बात पढ़ रहा है तुझे समझ भी आ रही है? वो कहता नहीं आ रही। आ जाओ रथ के ऊपर आ जाओ। उसने हाथ पकड़ा, हाथ रथ के ऊपर से ले लिया। उसने फिर मसीह यीशु की ऐसी मासूमियत को जाहिर कर दिया, मसीह की ऐसी हलीमी को जाहिर कर दिया कि उसने कहा रुक जा, पानी भी नजदीक है, मुझे बपतिस्मा लेने से कोई चीज रोक नहीं सकती। लिखा है उसने बपतिस्मा लिया, रासबाजी को पूरा किया और अपने मुल्क के अंदर नारे मारता हुआ यीशु का अपने मुल्क के अंदर चला गया और खुदा के नाम को चला देता चला गया। आमीन। ये हलीमी मसीह के अंदर, ऐसा बादशाह जो हलीम है, फरोतन है। तो भाइयों लिखा है कि उस बादशाह के लिए नारे लगाए गए। नारे जब गूंजना शुरू हुए, सुनिए मेरी तरफ देखिए, नारे होशाना के नारे लगे। ऐ खुदा हमें बचा, हमें निजात दे। होशाना, होशैना भी है, होशिना भी है, ये मुख्तलिफ जुबानों के अंदर लिखा है। ईद भी उस दौरान थी, इतनी भीड़ थी वहां पर, लिखा है इतनी भीड़। और उससे पहले मुआजिज़ा भी हुआ था, लाजर जिंदा हुआ था। लिखा उन्होंने भी सुनकर, लिखा है कि मसीह के पीछे हो रही है, बहुत बड़ी भीड़ मसीह के पीछे हो रही है। लिखा है कुछ आगे भीड़ थी, कुछ पीछे, मसीह दरमियान में। और नारे क्या लग रहे थे? होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। लोगों ने मना करना शुरू कर दिया, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। लोग जोर शोर से नारे मारने लगे। और भाइयों वो आगे मसीह के पास, सुनिए, और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे ऐ उस्ताद इनको मना कर दे, इनको चुप करा कि ये नारे जो लगा रहे हैं। यीशु ने कहा अगर ये खामोश हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और भाइयों अगर आप खामोश हो गए तो ये दीवारों की ईंटें जो है वही शोर पानी शुरू हो जाएगी। भाइयों पत्थर चला उठेंगे इजराइल कौम को, क्योंकि खुदा के लोग, लिखा जिंदा पत्थरों की हैकल बनती चली जाती है। हालेलुया। भाइयों ये पत्थर चलाएंगे जो मसीह यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, जिन्होंने निजात हासिल की है, जिनको जिंदगी मिल गई है, वो चलाएंगे। जिंदा पत्थर है वो। आसमानों के ऊपर भी हमने मसीह को भाइयों नारों के साथ वेलकम करना है।
और उस दौर के अंदर जो नारा लगाया क्या, होशाना, हालेलुया, होशिना। और आज का नारा जो हम लगाते हैं कौन सा है? आज का दिन तो वैसे ही नारों का दिन है, मगर आज का दिन वो कहते थे हमें बचा, हमें निजात दे। होशाना का मतलब हमें बचा, मैं और आप बचा लिए गए हैं। बोलिए आमीन। हम लोग बचा लिए गए हैं, इसलिए हम ये नारा लगाते हैं, हालेलुया। नारा लगाए हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, बोलो खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो बादलों पर आने वाला, हालेलुया। हमारा नारा जो है आज का ये है, मगर आज के दिन हम तो होशाना के नारे लगाएंगे, आमीन। क्योंकि ये वो दिन है जो खुदावन ने मुकर्रर किया है। हमें भाइयों इस तरह की जिंदगी बसर करनी है। सबने नारा लगाना है, आमीन। आज नारों का दिन है भाइयों, खुशी मनाने का दिन है, शादमानी का दिन है कि वो बादशाह का बादशाह है। आज पता चल जाएगा कि कितना नारा लगाते हैं। अच्छा भाई पहले नारा लगाएंगे, बहनें नहीं लगाएंगे। कौन सा नारा लगाना? हालेलुया का, ठीक है। हाँ जी, बोलो खुदावन यीशु मसीह की। हाथ खड़ा करके गाना है, ठीक है। बहनें नहीं अभी लगाएंगे। ओ शाबाश, अभी नहीं लगाने आप। हालेलुया, हालेलुया। वो बादलों पर आने वाला। बहनें बड़ी आवाज है। हाँ जी, अभी बहनें लगाएंगे, भाई नहीं लगाएंगे। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। नहीं, बहुत कम लोग हैं जो हाथ खड़ा नहीं करके जोश से नहीं करते। अब हाथ खड़ा करके नारा लगाना है, आपने नहीं लगाना, ठीक? हालेलुया, हालेलुया। बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। शाबाश, आपने अच्छा नारा लगाया। अब सब मिलकर नारा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोज करते हैं। हाँ जी, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला, वो बादलों पर आने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताली के साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए पाक रूह की इस बादशाह की ज़रूरत आ रही है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सिर को झुकाएंगे, खुदावंद की तारीफ करेंगे। प्लीज आंखें बंद कीजिए ताकि
یا ہوا تیرا نام